what your religious background is, because I had that as well. When I was in, through pop culture, through movies, through media, through my college professor, through my school teachers, I had a certain level of conditioning. I was given a certain understanding of India. Acha, this is what India is. This is how India works. This is how relationships between people in India and politics in India works. Which when I started going on, got like 15, 16, 17, 18, high school, college. That view that I was taught, it really started clashing with my own personal experience, with what I was noticing around me, with how my parents interacted with people from other communities or castes or something like that. And there was this clash that gave me a bit of a reckoning, as in कि अच्छा जो मुझे पढ़ाया जा रहा है या घुट्टी मुझे खिलाई जा रही है, it's not necessarily the reality of India. And could you tell me a little bit about your own journey there? Right. So yeah, like I said in Abhinav's show, right? I've grown up in Pune. I associate myself as a Pune boy. Right? That's my primary identity. And of course, I mean, I love my city. It's one of the most cosmopolitan cities in the world, dare I say. So the thing is, when you study in the best of Christian schools, go to the best of colleges, and your social circle is all English-speaking folks, and that's your circle. Then you think you want to be this intellectually very smart guy, so you start reading outlooks and the caravans of the world, and and your media at that time is just a great NTV. Right? And of course, there is conditioning of the community and identity you carry as well, and all these portals reconfirm that. But like I said, the day-to-day reality was at odds with what was being written in the magazines, like the exaggeration, the hyperbole, and my God, they're coming for you and all that. But of course, I mean, there are so many layers, right? The own conditioning of the community you're coming from, then all this, super stacked up against it, layers after layers. It's like sometimes you're thinking, either they are mad or either I'm mad. What happened here? And then the phase of romance with Arundhati Roy, which is fine till the age of 21, 22, but I still see some 40-year-old romancing her. That needs help, right? So and then I think, I mean, it's a chain of events, right? And my first thing where I started seeing the cracks was when she started justifying the 26/7 terror attack. I mean, the bodies were still warm, and she just, I mean, I was like, my God, what's wrong with her? Yeah. And then small little things like that, right? And see, with me, it's a very unique case, right? I see myself having so many of the identities growing between two civilizations, per se. Right? I carry the Pune identity, I carry the identity of a Kashmiri, I carry the identity of a Muslim. So you're constantly looking at the realities, like go back to Kashmir, and you're seeing from their prism, right? They're in a conflict zone, this resistance towards India, and then back here in rest of India, like this is this is a dream place. I was just telling someone the other day, in my society, and it's a fact. It's not like I'm trying to make this up or something. I said, go from here to the MG Road of Pune. Within 8 kilometers, you will have temples of 8 major faiths of the world. And I said, I've stayed in Melbourne, I've traveled a little bit, and you don't get to see this anywhere. And yet, the narrative which was there always from these leftist publications was such that, oh my God, this is land where, these majority Hindus just come after all the minorities. But you realize the reality is completely different. The inverted reality, even today, that you see leftist publications, putting on the minds of people. So I don't blame the Irish people. You need to have a taste, you need to have, okay, I like this field, and then you want to not just be restricted newspapers, understand where they're coming from, what's the agenda behind all this. But yeah, we are faced. People might, when I would find it sometimes funny at early 20s that fighting civilization onslaught of nationalist ideologies. But one is, and then over the time, it's been it's taken like a decade or something, where one is clear that nationalist is a position one would want to take, because this civilization with 8 major world faiths and it being the only civilization which is polytheistic majority. In fact, that's the underdog in the civilizational war in the world. Of course, that doesn't mean one goes against communities per se, but it's okay to talk about patterns. It's okay to speak the hard truth, because then those things which keep bubbling under the surface, they otherwise come out in very ugly ways. So it's just civilization search happening with the we need to have honest discussions with each other, and this country is worth saving. It's an idea worth saving, and it's an idea which is nowhere else in the globe, and it has its flaws, of course, but yes, India should not get defined by just all wrongs, and it's not what is due. So high time it did get its due. So that's where I stand today after all these years, from boys lover to her biggest city today. So that's look at that. And Amara, would your story similar thing, say, or were you someone who always had the sort of ideological background that you have today? Because like I said, with me, it was different in the sense that I was conditioned a certain way till about 15, 16 years of age. 15, 16 years of age, partially thanks to my parents, partially thanks to my own experiences and starting to think myself a little bit more. The way I looked at the world, the way I looked at India, वो थोड़ा सा change हुआ. आपकी journey similar थी या आपकी journey different थी? मेरी जर्नी थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि मेरी जो मेरी परवरिश है वो बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी में हुई है, और मैं गांव में भी रही हूँ, तो यू कैन से आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेस.
आप मैं ये बताने की भी कोशिश कर रही हूँ कि जब आप गाँव में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो एक लेफ्ट आइडिया है कि हिंदू नेम करना, वहाँ के हिंदू भी शर्मिंदा नहीं होते हैं, लेट बी वेरी क्लियर। वो अपने रिलीजन को ऑन करते हैं, वो उसमें प्राउड करते हैं एंड आपको ऐसे फील नहीं मिलती है कि हिंदू कल्चर या हिंदू रिलीजन को लुक डाउन एक तरह से दिखना चाहिए कि बैकवर्ड या समथिंग। तो मैं ऐसी जगह से नहीं आई हूँ जहाँ पे हिंदू शेम होना पड़ता था अपने आइडेंटिटी के लिए। लेकिन फिर मैं ऐसी जगह शिफ्ट भी हुई जब मेट्रो सिटी में आई, बड़ी सिटी में, जहाँ पे मैं ये देखा कि कुछ हिंदू हैं जो हमेशा कोशिश करते हैं बताने की कि नहीं, हम इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, ये हमारी आइडेंटिटी है तो हमेशा शर्मिंदा है। तो मेरी जर्नी है वो बहुत ही इस वे में मतलब वन में नहीं रही है, लाइक देयर इज़ स्लो इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरे घर में कभी कोई एंटी इंडिया सेंटिमेंट नहीं था या इंडिया से बहुत मोहब्बत थी, रीज़न बीइंग कि मेरे फादर इंडियन नेवी में थे। तो इधर कोई इफ़ेक्ट नहीं था। मतलब मुझे जब कोई बोलता था कि मुस्लिम के देश प्रेम में थोड़ा भी शक करना चाहिए तो मैं बहुत हर्ट होता, क्योंकि मैं तो बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पूरा खानदान बहुत प्यार करता है, तो ये फीलिंग कहाँ से आ रही है? बट देन मुंबई में जब हम थे तो ये देखा कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में सेलिब्रेट भी करते हैं। तो क्या होता है, जब आपको ये आगे से बोलता है आपको बुरा लगता है, बट जब आप खुद से विटनेस करते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये प्रॉब्लम है, एग्जिस्ट, राइट? देन ये सब चीज़ें है ना, ये कंट्राडिक्शन, इसे आप सोचने को मजबूर कर देता है, ये सब क्यों है? क्यों है जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें इस रंग में क्यों रंगा जा रहा है? बिकॉज़ ये तो मेरी कहानी नहीं है। तो जब ये सब चीज़ें मैं समझ रही थी, तो मुझे बहुत नुआंसेस समझने को मिले। नुआंसेस इन द सेंस कि देश प्रेम है हमारे अंदर एंड बहुत सारे इंडियन मुस्लिम में, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें कंडीशनल देश प्रेम कहते सिखाया गया है। वो कंडीशनल में इसे बोल रही हूँ कि एक टू नेशन थ्योरी है कि हम रह नहीं सकते हिंद के साथ, तो हमें अलग देश दे दो। लेकिन अब हम जब यहाँ रहते हैं हिंदू के साथ, तो आप हमें हमारी शर्तों पे रहने दो। उस शर्त में है कि हमें हमारा पर्सनल शरिया मानने दो। हम लोग कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलिए, हम वो करने दो। अगर आप नहीं करने देते हो तो आप ये पता नहीं क्या हो जाता होता है, एक मेजॉरिटी हो जाते हो जो हमारे पीछे हमारे खून का पैसा है, हमें हमारी चीज़ें नहीं करने देता। तो अब बात है कि इन नुआंसेस को कोई ढंग से एड्रेस नहीं करता है कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अपने देश से मोहब्बत नहीं है, प्रॉब्लम है कि तुम अपने देश से मोहब्बत कंडीशंस पे कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम हमेशा अपने देश से डिमांड कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे हो कि तुम इसमें पार्टिसिपेट कैसे करोगे, तुम्हारा मेन स्ट्रीमिंग कैसे होगा। तो इन चीज़ों को मैंने समझा और मेरी जर्नी थोड़ी इस नुआंसेस में आई हुई है। It's very interesting जो आपने बोला ना, because so were you saying something, Emma? No, continue your point. let me to you now, Emma, because it's very interesting. आपने जो हाँ माना है, जो आप मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं कि मेन स्ट्रीमिंग कैसे होगी तुम्हारी, एंड स्पीकिंग ऑफ व्हिच हमने देखा है कि यू लुक एट द मेजॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी जो है, तो उसमें जो डिस्कोर्स है विद इन द कम्युनिटी, उसमें एक्चुअली काफी डाइवर्सिटी है. सम माइट बी फॉर बेटर, सम माइट बी फॉर द वर्स, बट एटलीस्ट डाइवर्सिटी बहुत है. लेफ्ट में बहुत ज्यादा लोग, काफी लेफ्ट विंग लोग हैं, काफी सेंटर के लोग हैं जिनको बोल लीजिए, काफी राइट विंग के लोग हैं. एंड ऑल ऑफ देम हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ मेन स्ट्रीम voice or at least mainstream reach. But within the Muslim community, at least in India, you think there is often a misconception कि जो Owaisi बोलता है या जो आजम खान बोलता है SP का, that is basically the mainstream Muslim opinion. That is how the Muslim society India thinks and behaves and acts. And so in that sense, Emma, जब आप बोलते हो या people like Khalid Amana speak, what is the reaction that you get from within the community as somebody who's on the outside, let's say? हाँ, लोग समझते हैं कि मुस्लिम सारा मोनोलिथ, हाँ, वो ऐसे बोलता है वो सब वही मानते हैं, दुनिया के सारे जितने भी करोड़ मुस्लिम. ऐसा नहीं है. मुस्लिम में भी डाइवर्सिटी ओपिनियन है, मुस्लिम में अलग अलग समझ फिरके हैं, ये सब हिम्मत नहीं है. It doesn't represent Muslims. तो and even within a certain sect, समझे, there is also the individual ना, कोई बहुत रिलीजियस है और कोई बहुत एकदम लिबरल टाइप है, मानता नहीं कोई, तो it's a whole spectrum. हाँ, ये बात है. So in that same way, in Khalid, what has been the reaction you witnessed, like to someone like yourself? Like, maybe you guys have a show now. We'll get to a second, but when you speak up, let's say on social media, on like a public platform, what is the reaction that you get from within the community, and what is the reaction that you get from sort of broader non-Muslim communities as well? Yeah, I mean, the normal tag is Sangi, as if it's a sir. That's an easy one, yeah. And you're like, okay, dude, I mean, are you trying to play with our head? Because I'm definitely not getting offended by that. अच्छा, इसको क्या बुलाना है? अच्छा, संगी नंबर 1, ठीक है, संगी डाल जल्दी से. Yeah, so Sangi is a tag you get. BJP agent is a tag you get, and Sarkari Muslim is a tag you get. They even say Maulana Wahiduddin Khan, and they would call it Sarkari Muslim, right? And the guy was talking about peace and reconciliation all the time. So those are the tags you get. Look at somebody like, sorry to cut you off there, Khalid, but look at somebody like Hamid Dawai, because I read one of his books recently, and even though I disagree with him on what he believes like Hindutva to be, because he was very skeptical of Hindutva, and I agree with that. But there is so much of Hamid Dawai's book that you can read, and you can be like, yeah, this guy makes so much bloody sense. So even if I don't agree with him on like 25% what he says, that 75% is really worth fighting for. Is really worth reaching out across the island and be like, acha, Hamid Dawai, yeah, bolo. But how many people you would think, maybe outside of the Muslim community in Maharashtra, let's say, how many people really know who Hamid Dawai was?
See, that's the tragedy. Problem is that reform is expected only from the Hindu community. It's not expected from any other community of India. And you have to constantly tell them reform karo, and then just always take his writings, and that too you take the writing where it's about the Hindu faith, not about Muslim faith, right? And you're dishonest there as well. And that's the tragedy. They don't understand. They can disagree with the likes of Midlai, but at least voices which are calling for introspection would help the community itself. You would have not got play as pets by the communist dialogues, and you would have had a much bigger population whose intellect would have risen, right? So that's the tragedy. I mean, reformers are only for other communities. For us, maybe reformers are not because we are perfect, right? So the reform and inspection are needed. But at the end of the day, who does it hurt? That poor Muslim kid, right? Who could have done so much, and then I mean, see, it's two madrasas. One is one he goes to initially, and then is the one communists who take him in with their magazines and all, right? So अगर वहाँ बच गया तो बाद में वो लोग पकड़ लेंगे, scroll आपका Quinto, ये सब एक so victimhood, they trusted with so much. I mean, they're so intelligent that, I mean, it's their only intellectual skill, so much every day they'll just tell him doom, they tell him victimhood. हालांकि उसकी normal life ऐसी होती नहीं है. Of course होते हैं victims, लेकिन अगर 2 victims हैं तो उसको बोलेंगे कि आप 90 ही victims हो, और उसको ये भी एक जब उसने सोचने की कोशिश नहीं की उसके अलावा कि उसको बता रहा है, सिखा है, so ये फिर किस भी हो जाती है community. So this is what happens, and then voices like us, a few thousands, which is increasing, then you will discredit कि क्या यार अपने कम्युनिटी का प्यार ही नहीं है, सारे गलत चीजें अपनी कम्युनिटी में दिखती है क्या यार, उनको नहीं दिखता है क्या, कन्वर्ट क्यों नहीं हो जाते हिंदू? कैलाश खेल what I get called a lot of times, right? Oh, really? And I'm like इसमें ही तुम्हारी कम्युनिटी बिगड़ रही दिखती है कि डू कल्चरली वी आर वन, राइट? हिंदू ब्रदर्स विद एवरी टाइम हम दिखते हैं, वो हम कौन से अरबी है, वो कौन से कहीं है, राइट? हमारा बेस्ट फ्रेंड मोमेंट होगा दूसरी कम्युनिटी का, और हर लाइफ में इकट्ठे होते हैं, तो क्यों बेवकूफ बनते हो यार? लोगों ने से यू बीन हियर टुगेदर 1000 years and relatively अगर इस मुल्क को उठा लो, यू सी across especially in neighborhood, it is amazing. पूरा ये भी है ना शाम, ये सेल्फ लोडिंग का प्रॉब्लम जो हिंदू सेक्शंस है ना कम्युनिटी के, वो कंफर्म कर रहा है इनका हेट्रेड. इमेजिन पंगा ये है कि हमको कह रहे हैं कि यार इनका जो हेट्रेड हमारे रेडिकल्स का बहुत अनजस्टिफाइड है, दे हेट योर आइडेंटिटी. वो कहते हैं हाँ यार मैं तो खराब ही हूं यार, let them, we are horrible people, dude. Yeah. Like, I mean, it's a unique. I was saying Amna the other day, and it's unique to. It's a very, I don't know, see it the way one wants to see it. Muslims have this habit pattern. Not every Muslim, but that they defend our West, and Hindus have this pattern that they don't even defend a genuine victim. आज तक किसी मुस्लिम को एक प्लकार्ड पकड़ते हुए देख क्या? I'm ashamed to be a Muslim. Something never see. वाले देखो sorry. ऐसे टेरर अटैक होने पे भी नहीं करते. नहीं करेंगे. Muslims are proud that way. So what the hell is wrong with that? That's the thing. Like, भाई तुमने थोड़ी किया terror act. You person थोड़ी you've not committed a terror act. So what compels you to go and पे खड़े हो जाने कि भाई ashamed to be a Muslim? अच्छा ठीक है. This is a performative art. This is a performance art. Is basically what it is. India में much like the West में भी देखो यही मारी. West में people like Robin DiAngelo are writing best-selling books, and they're inviting suburban white men to come to their dinners, where Robin DiAngelo teaches them about their white privilege and how horrible they are, and how they can be better allies with the blacks by checking their white privilege. So वही performance art जो West में Robin DiAngelo and their likes doing, it's the same kind of performance art. The people जो खड़े जाते black लेके ashamed be a Hindu, मेरे को बहुत शर्म आ रही है. It's the same exact thing. No, and imagine your hatred to the radical Muslim who's like, yeah, you should be ashamed because I hate to do anything. Yeah, I do hate myself, and that's the thing, Indian secularism was defined by these entitled rats who thought self-loathing Hindu who mistakes self-loathing for enlightenment, and a Muslim who hates him for his identity together come as ये देखो ये सेक्टर मुस्लिम है और ये स्केलर हिंदू है. बाद में एक तो मेंटल असलम में है चाहिए कि भाई you don't need to be ashamed, and the other one need counsel की you don't need to be so radical. It's a very chill society. भाई आठ वर्ड में एज ऑफ एथ्स है, एथिक्स के लिए भी लगा है, बट उसको ऑप्शन लगता है कि सिर्फ मैं क्यों नहीं है. मतलब big take about whatever else in your minute, लेकिन प्लकार्ड पढ़ के मैं थोड़ा cringe हो गया यार. Cringe. And it is, that's exactly how to describe it. It's very cringe. और हाँ, very cringe is very like low level like life-seeking behavior. That's what it is. When no other community does this. No other community does this. I haven't seen any other community do this. It is important. Yeah, at least, see, the thing is, at least we can have a historical gift of wonder onto the blacks. What is the gate Hindu has that, I did not welcome the invaders better the way I should. I mean, it's bizarre, So, I mean, so this secularism, I reject it. I mean, what I'm saying is, okay, fine, you feel that in path of India, you're the majority and you have a sense of accountability. We really cherish that. That's very nice, It makes us feel more secure. But then when likes of us are calling out our bigot, like, no, ये bigot नहीं है, ये तो अच्छा इंसान है. You're like, now there's something really twisted with you, dude. मतलब you're like, allow the radical from my side to abuse you. मेरे radical पे तो radical की भी क्या, कि तुच्छ भी होगा, कोई thief होगा, तो I'll feel भाई खालिद आशे मुझे माफ कर दे. Muslims. Sorry, Anna, you've been to talk a long time.
मैं यही बोल रही थी कि मैं एक बात बहुत पहले से बोलती आई हूँ कि जो इंडिया एग्जिस्ट करता है, ये हिंदुस्तान जहाँ सब लोग हुँ, इतना डाइवर्सिटी है, वो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हिंदू जरूरी है, टू बी Yeah. वेरी फेयर। एंड इसको बचाना इसलिए चाहिए क्योंकि यार आपको मतलब मुझे पर्सनली एज मुस्लिम विमेन बहुत सेफ फील होता है हिंदू जोड़ में, क्योंकि आई कैन हैव माय फ्रीडम। मैं कोई मुझसे पूछने नहीं आता कि मेरी फेथ कितना है, कितनी मुस्लिम हूँ, कितनी नहीं हूँ। मैं जो चाहे पहन सकती हूँ, मैं चाहे हिजाब लगाऊँ, मैं चाहे ना लगाऊँ, मैं चाहे नमाज पढ़ूँ, मैं ना पढ़ूँ, ये सारी फ्रीडम आपको इस्लामिक कंट्री में मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इन दैट सेंस ये जो कंट्री है, ये जो ब्यूटी है, ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी है यहाँ पर, Yeah. राइट। अगर अगर आप बोलिए कि इतनी एक थी कंट्री होती है, तो आप देख लीजिए कम्युनिस्ट कंट्री का क्या हाल है, वहाँ Hmm. मुसलमानों का क्या हाल है। तो उस सेंस में भी वो समझ में नहीं आता, उस सेंस में भी बीइंग अ हिंदू की बात शर्मिंदा होना है, बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे। तो Yeah. आई वाज जस्ट It's funny माना क्योंकि इंडिया में स्पेशल बीमारी है। इंडिया में देखो सेक्युलर हिंदू उन लोगों को माना जाता है जो दरगाह में बैठ के नमाज पढ़ा है, वो सेक्युलर हिंदू होता है। सेक्युलर मुस्लिम कभी he will never step inside a temple. And राइट। then not a secular Muslim, then becomes a Sarkari Muslim, like Khalid was saying. So secularism हमने डेफिनेट बना रखा है हमारे देश में, उसी के साथ हमारी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। But Amar, one thing I want to talk to you about is something that you discussed on Abhinav show, and I found really interesting that एक दो साल पहले तक मुझे इसके बारे में honestly ठीक से knowledge नहीं थी, can say it very openly. And you talk about the Pasmanda committee that you belong to, और किस तरह से जो इंडिया में हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम राइट्स की लड़ाई है या जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो जनरली स्पीकिंग एक बहुत छोटी कम्युनिटी जो है मुस्लिम की इंडिया में, वो डोमिनेट करती है, चाहे कल्चरली हो, चाहे मीडिया में हो, चाहे पॉलिटिकली हो, जनरली वो डोमिनेट करते हैं। सो थोड़ा सा फॉर पीपल दैट माइट नॉट नो, इफ यू जस्ट गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड, माना कि ये पसमंदा कम्युनिटी और ये अशरफ कमिटी है, इसकी क्या बैक स्टोरी है, थोड़ा सा हमें बता सकते हैं? बेसिकली अगर आपको बहुत ही शॉर्ट मतलब मैं बिल्कुल बोल बोल में बोलूँगी, मूल निवासी मुस्लिम जो है उनका पाशंदा बोल सकते हैं। हम्म, तो मूल निवासी मुस्लिम वो हैं कि जिनके एंसेस्टर 100% इंडिया से हमेशा से रहे हैं, बट फॉर वेरियस रीज़न कन्वर्ट हुए हैं। वो वेरियस रीज़न कुछ भी हो सकते हैं। हम्म, अशराफ वो है जो कहीं न कहीं मानते हैं कि वी आर सुपीरियर, एंड द रीज़न बीइंग इसमें रेसिज़्म एंड कास्टिज़्म दोनों आ जाता है। रेसिज़्म इन द सेंस कि जो मिडल ईस्ट से आए हैं, ईरान से आए हुए हैं या फिर अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं, तो दे आर बेटर मुस्लिम, तो बेटर ह्यूमन बीइंग सब हो जा रहा है, एंड दे आर बॉर्न टू रूल, ठीक है? तो एक वो हो गया। दूसरा जो कुछ हायर कास्ट मुस्लिम थे, वो कन्वर्ट हिंदू थे, वो जब कन्वर्ट हुए, तो वो अशराफ में ही चले गए। तो जैसे जिन्ना है, he could be a शाफ़ क्योंकि वो हाई कास्ट पहले से था। तो इस तरह से पासमानदे में यू कैन से बैकवर्ड मुस्लिम एंड दलित मुस्लिम, पीपल डज़न्ट नो बट दैट मुस्लिम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी को पता ही नहीं है ये सारे स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये जो अशराफ कम्युनिटी है, ये विक्टिमहुड प्ले करती है। विक्टिमहुड प्ले करती है डेटा पे पाशमानदा की। क्योंकि हम्म, सच कम्युनिटी का रिपोर्ट देखते हैं ना, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई, वो बेसिकली पाशमानदा मुस्लिम को लेके लिखी गई है। अगर आप इस चीज़ समझिए कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर अगर जो हायर कास्ट हिंदू हैं, वो दलित के डेटा उठा के बोले हम विक्टिम हैं, देखो हम विक्टिम हैं क्योंकि हिंदुओं का इतना बुरा हाल है। हाँ, तो वो चीज़ होता है, तो वो प्रिविलेज है बहुत अच्छे से। वो प्रिविलेज है बट वो आपको विक्टिम बना देते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड थिंग, उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है नहीं पाशमानदा कम्युनिटी से। ओके, तो वो बिलॉन्गिंगनेस नहीं है। तो हम हमेशा उनके फुट सोल्जर जैसे ही रहेंगे, वैसे ही हम ट्रीट होंगे, ना हम वोट बैंक कहेंगे। इसको एग्ज़ाम्पल जैसे समझाने के मैं बताती हूँ कि एक बाबरी मस्जिद केस में समझाती हूँ। तो जो बाबरी मस्जिद का केस था, उसमें एक अंसार करके थे, उन्होंने वो केस लड़ा था काफ़ी सालों तक, ठीक है? अब उसका फैसला आ गया, गवर्नमेंट ने एक बड़ा कमेटी बना लो, उनको हम पैसे दे रहे हैं, तुम्हारा नाम मस्जिद उधर बनेगा। तो वो जो कमेटी बन रही थी, उसमें सारे अशराफ थे, सारे के सारे। तो जो प्लेंटिफ था इस केस में, उसमें एक पाशमानदा था, तो उसका जो बेटा था, उसने बोला कि मुझे भी इसमें ले लो। मेरे डैड ने तो इतने सालों इलेक्शन लड़ा है, अरे सॉरी, ये केस लड़ा है, तुझे भी ले लो। उन्होंने नहीं लिया। सो आप समझिए, लोगों को बात समझ में नहीं आएगी। तो पाशमानदा जो मुस्लिम है, को रिप्रेजेंटेशन भी वो देते ही नहीं है। तो जिस बंदे ने केस लड़ा है, उसके बेटे को भी उस कमेटी में नहीं ले रहे हैं, और सारे अशराफ वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस और ये सेम है, जितने भी मुस्लिम के नाम पे इंस्टीट्यूशन बने हों, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, इवन संघ आयोग भी, उसमें सिर्फ अशराफ होते हैं। तो जब वो लोग जो हमारे एलीट है, वो जब कॉमन जो मुस्लिम है, उसे कुछ उनका वास्ता फील ही नहीं होता, कोई कनेक्शन फील ही नहीं होता, वो सोचेंगे कि ये लोग चेंज हो, रिफॉर्म हो, उनका भला हो। वो तो सोचेंगे कि जितना अच्छा है कि ये फुट सोल्जर बने रहे, इनके अंदर बैठा रहे, और ये एक तरफा हमको वोट दे, ये उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और इसीलिए उनका कम्युनिस्ट के साथ बहुत अच्छा अलायंस होता है। वो विक्टिम गाली रहते हैं, और वो प्लेटफॉर्म देते रहते हैं। सरजिश मान जाके बोलते हैं कि हिंदू मास सड़ा हुआ है, मतलब और मैं बोलती हूँ, अगर वो बोलता है, उसको प्लेटफॉर्म किसने दिया? इन लोगों ने दिया है ना। आप उनको लोग कैसे प्लेटफॉर्म दे क्यों रहे हो ऐसे लोगों को? क्योंकि हम तो ग्राउंड पे साइड बाय साइड रहते हैं, हमारा उठना बैठना हर चीज़ बहुत मिक्स है। हम इस तरह सोच ही नहीं सकते हमारे हिंदुइज़्म के लिए। हमारे हाथ के रिचुअल्स अभी भी साथ निभाए जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि धर्म वगैरह बदल भी गए हैं, बट खानदानी जो नाई है, वो सेम बना है आज भी। वो नाई का बेटा नाई बनेगा, तो कई सारी मुस्लिम शादियों में जो नाई है, वो हिंदू आता है, और हिंदू शादियों में है मुस्लिम नाई आता है। रीज़न बीइंग कि पहले से वो कनेक्शन चला आ रहा है। तो हमारा उठना बैठना सब साथ है, ऊपर से हमें रिफॉर्म की जगह और ज़्यादा पुश किया जाता है एक एजेंडा, जिससे कि हम अपने कल्चर से कहीं न कहीं डिटैच हों और उससे नफ़रत करें। तो इसका पूरा हुँ, दो इसके दो लिए सवाल है बस, उस पे मुझे आपसे कहने थे, माना जस्ट स्टिक विद यू फॉर वन सेकंड, कि पहला तो आपको क्या लगता है कि कितना इन्फ्लुएंस है ये जो अशराफ कम्युनिटी जो आप बोल रहे हैं कि इनका बहुत आउटसाइड इन्फ्लुएंस मीडिया में और पॉलिटिक्स में, बट पाशमानदा कम्युनिटी पर उनका कितना इन्फ्लुएंस है पर्टिकुलरली कल्चरली रिलीजियसली? और दूसरा कि
इंडिया में अगर आप देखिए, कास्ट इज ऑब्वियसली अ वेरी बिग इशू कि जो एटलीस्ट हिंदू कम्युनिटी को लेकर इसके बारे में काफी डिस्कशन होता है, काफी डिस्कोर्स होता है। उस लेवल का डिस्कोर्स मुस्लिम कम्युनिटी में पाशमंदा और अशरफ को लेकर नहीं होता। तो वो दो सवाल मेरे आपके लिए। इन्फ्लुएंस 100% उन्हीं का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि जब देखिए एक बात मैं बोलती हूँ हम्म, कि एक एवरी इंडियन मुस्लिम क्या देखता है, वो भी नेशनल टीवी देखता है। हमारा भी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जी टीवी होगा, एनडीटीवी होगा, इस तरह के नेशनल न्यूज चैनल ही होते हैं सबके घरों में, न्यूज पेपर ही होते हैं। तो वहां से जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मेन स्ट्रीम से हमेशा अशराफ की ही आती है और कम्युनिस्ट मीडिया की आती है। प्लस जो ज्यादा सुना जाता है ना, जिसकी आवाज बहुत बुलंद होती है, जब आपके कान में वो 10 बार पड़ेगा तो बोलोगे कुछ तो सच्चाई इसमें होगा ही, हम्म, राइट। देन एक चीज बहुत ज्यादा है, ये एक पैटर्न है जो मैं बचपन से देखा है कि पासवान के अंदर फिर बहुत डरा जाता है कि जो हिंदू लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, वो सपा किसी के भी हों, वो कभी आपका कुछ सुनेंगे नहीं, दे विल नेवर वर्क हम्म, फॉर यू। एंड एक जो गरीब मुस्लिम होता है, जिसके बहुत कनेक्शन नहीं है, उनको बड़ा टेंशन होता है, अगर हम हमारे ऊपर कुछ भी मुसीबत आएगी तो कौन हमें लुक आफ्टर करेगा। तो हम्म, वो बोलेंगे देखो मैं आता हूँ, मैं जाकर के अपना जो हिंदू लीडर है उससे बात करूंगा, तुम्हारा काम करा दूंगा, आई डोंट लाइक इट बट करना पड़ेगा तुम लोगों के लिए, राइट। तो हाँ, ये एक साइकिल है इस तरह से, तो उनका होल्ड बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। आप यूपी में जाएंगे तो वहां पर ऐसे सब केसेस मिलेंगे जहां पर कि नारे दिए गए हैं कि पासवान टाट उठाने के लिए है और अशरफ टिकट लेने के लिए। हम्म, ये रियलिटी हमारे पॉलिटिशियन को पता रहती है, लेकिन वो क्योंकि जब वो मेन स्ट्रीम नहीं बात हुई तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं जब इंडिया में बड़ी हो रही हूँ, हमेशा कुछ भी किसी कम्युनिटी के साथ मिसहैप हो तो मुझे पता रहता है, ठीक है। हम्म, मुझे कोई नहीं पता कि कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ है, वाह, ठीक। आई डिडंट नो दैट, मुझे कुछ हाँ, भी उसके बारे में नहीं पता था। मुझे रिसेंटली सोशल मीडिया से खालिद से मालूम पड़ा कि अच्छा कश्मीर में वहाँ से ऐसे हिंदू को निकाल दिया गया, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में कभी इतना आवाज नहीं उठाई, उसपे तो एक नॉर्मल लड़की को उसके बारे में नहीं पता है। तो हम्म, इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कि चीजें क्या आप देख रहे हैं, किस चीज को जगह मिल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। कास्टिज्म वहाँ पे थी और उसपे अम्बेडकर तक लिखा हुआ है हम्म, बुक। तो आप समझ सकते हैं कि सबको पहले से पता था। हाँ, yeah, फिर मैं भी Ram, बात I just करना want. चाहता हूँ कि जब okay, बात well, करें कि I'll go to इन्फ्लुएंस, Ahmed first and then I'll come to Khalid. Sure, sure. वो जब हमने जैसे बोला कि अपने मेन में नहीं आती, तो कहूँ मुझे मुझे भी फर्स्ट टाइम माय लाइफ आमने से ही मैं ये लफ्ज़ सुना, अशरफ और अच्छा, पाकमांदा। मुझे पिछले हाँ, साल तक same, पता ही नहीं था इस मुद्दे के बारे में, क्योंकि मैं साउथ में रहता हूँ, हमारी सारी दीनी कम्युनिटी बोलते हैं हमको, यहाँ पे है नहीं वो, मुझे पता ही था कि ये इशू है। और बात कर रहे हैं प्लेटफॉर्म की, तो मौलाना हामिद दलवी नाम था उनका, खालिद हामिद दलवी, Maulana Ahmed Bhai, Ahmed. हाँ हामिद बिल्कुल। दलवी, हामिद दलवी को नहीं जाना, हम्म, लेकिन शहर राशिद को सब सब जानते हैं, उमर खालिद को सब जानते हैं, हाँ, फाखर शेरवान को सब जानते हैं। तो ये सीन है, हाँ, ये लोगों को माइक्रोफोन क्या कहते हैं, मेगाफोन दिया जाए, जाओ बकवास करो। शेरवानी भी हमारे शराब है। अरे हाँ, हम्म, first, there you go. लाइक एक सवाल ना, ये डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं? पर नाम बहुत तो बहुत मुसलमान ही है, बहुत थोड़ी मुश्किल हो गया, उठा लेकिन जो भी लोग ना वो करते हैं, एक ईरानी शेरवानी, ये प्लेसेस के नाम है ईरान में और मिडिल ईस्ट, तो जो अपने सर में वो लगाते हैं वो तो अपने आपको दिखाई देंगे कि बिलोंग टू आउटसाइड, हम्म, उसको पता ही है सरनेम शायद। सरनेम से पहचाने जाते हैं। एंड देन खान पठान, शाहरुख खान ने भी बोला था ना मैं पठान का हूँ। अच्छा, तो मैं क्यों फिर शरीफ? और जस्ट पता ना बहुत पड़े। शरीफ आदमी, बस वही है। बुल्ला की जान मैं कौन? बुला की जाना में कौन वाली बात आती है। Khalid, what were you saying? Yeah, no, like Emma said, it was Amana only who a couple of years back told me that, you have a caste privilege and you don't know it. And she doesn't care to tell me every 2 months about it. So, and, I was traveling in UP some years back and the driver asked me that, what's your caste? I said, I don't know. And he said, आप तो मान आदमी हो, आपका caste नहीं होता. I said, I don't know my caste. So, see, I mean, Amna's right. The fact that मुझे कभी इस चीज का, गुमान नहीं था कि what's my caste, that is privilege in itself. And through her, now that we have very close friendship and we run a channel together, I learned the struggles of the work caste, and also I did have an idea when you go up around your friends community, and then you realize certain castes is spoken low about, the ones, the Safai Karamcharis. And now I feel like, how we dehumanize them in community. So that is definitely there. And also, speaking about this alliance, the power of Ashraf, I now tending to believe that, because I'll just give you a recent example. So 2 incidents in India just the last week have happened. So you had this meet in Haridwar, and you had a bunch of backwards radical guys from the majority community who made some calls for genocidal calls and all that, right? And then, of course, what happened? You saw the unionist system lash out and start this fear mongering that now all Hindus are like this, and they are bold and all. Now here's the fun part: all those Twitter ideologue communists across newspapers, whatever hold they have, they were all in the same breath doing apology for Owaisi, where he gave a threatening speech to Hindus, like when Yogi and Modi go. Yeah. So, boy, if you can, as the second largest community, make a threatening speech, then you're not victim; you're a bully who's playing victim. Right. Yeah. So then definitely people have a right to say that why these different parameters, and especially in case of Owaisi, he has political power. And of course, again, you see the disproportionate coverage. For God's sake, he has 2 seats in the Indian Parliament. You give him coverage across news media portals as if he's got 200 seats. Right? Unlike Arvind Kejriwal, he doesn't even throw a lot of money at you. So I don't know what the relation is, right? So the point is that it is there. Of course, it does not mean that we are taking this support of this community ecosystem and saying there are no problematic patterns with us. But we're just saying that it gets emboldened, and there is a complex dynamic there as well. If they didn't have that support, then definitely the confirmation biases, larger propaganda games would have not happened at that rate.
You know, Yeah. the average Muslim would also have to have been at least forced to introspect. So this alliance needs to be called out what it is. You know, the secessionist Muslims like Shajil and Umar Khalid, who are proudly, you know, they hate all the security forces of India. अब security forces of India में तो हिंदू है, मुस्लिम है, you know, जो जिन एरियाज में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनके पुलिस ऑफिसर मरते हैं अटैक्स में ज्यादा. So ये समझना इम्पोर्टेंट है कि नुआंस की जो नेशनल साइड पे भी है, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट मेजॉरिटी कंट्रीज हिंदू के तो उसमें ज्यादा होंगे, लेकिन हर साइड में मतलब नेशनल साइड क्रिश्चियंस मुस्लिम्स में, और फिर गद्दार भी दूसरे साइड हिंदू भी है, मुस्लिम भी है. तो बहुत एक समझ के आपको समझना पड़ता है कि हु प्लेइंग डबल गेम्स, हु इज एन अपॉर्चुनिस्ट एंड ऑल. है तो यही दो साइड, बाकी वो वर्ड सिग्नलिंग की पोजीशन तो डिल्यूजनल है कि दोनों साइड सही है. अरे अब जो मुल्क तोड़ना चाहता है और जो मुल्क बचाना चाहता है वो सेम थोड़ी है यार भाई. Yeah. So Yeah. So, that's what I want to say. मुसलमानों को हैव अ रोल सेट फॉर मुस्लिम्स की, तू ये रोल प्ले करेगा, तू विक्टिम बन गया, दिस इज व्हाट सपोज से ये नहीं करेगा. अगर तू ब्रेक द मूव, इफ यू एस्केप द लैंटर्न, तो सो टू स्पीक, escape the planet. I like आप के पीछे पड़ जाएगा आप लोग के, जैसे कि मेरे पीछे पड़ता है. आप दोनों ने विटनेस किया है, इतना बदनाम करने की कोशिश की है मुझे, क्या क्या कोई करने चाहिए. यहाँ की लड़कियों को पीछे भेज मेरे, क्या इस पे फॉल्स एलिगेशंस वगैरह, मोलेस्टेशन Oh my वगैरह, God. किस हद तक गए हैं लोग, किस हद तक गए हैं, इतनी कोने हरकत सब के हैं लोग. संभल करो, तुम्हारे पीछे पड़ने वाले हैं. अब आप हम रीजन ऑफ ईस्ट से, ठीक है. अब तो तुम तीनों सही शो पे आ चुके हो, so good luck. All the best all three of you. Yeah. नहीं फाइनली शाम फाइनली इट्स लाइक यू टेलिंग देम, देखो 6-7 साल से जो ये लोग थे, नाउ फाइनली आई ओनिंग देम एंड एजेंट शाम रॉक के लिए वी डन इट लुक Rocky लिए recruitment ले रही है हमारी. हाँ. और के लिए ऐसे के लिए हमारी recruitment type चालू है, आप देख रहे हैं live. How does it feel being minority for a change? I know, बताइए. Yeah. शाम बच रहा है. शाम for the first time डर लग रहा है, you're not feeling ashamed. मैं बहुत डरा हुआ हूँ. I feel very scared. But the good thing is good things you're not feeling ashamed. Yeah. Now it's our chance. So Sham, we like to tell you as majority, we're very ashamed that if we're making you uncomfortable in any manner. देखो, जब तक मेरे को placard नहीं दिखाता तब तक I will not leave it. You have to come to the show next time the placard and I'll leave you. Question for you. ये मुझे समझ में नहीं, क्लैश खेल पकड़ा जाता है. Like what is the question? Kalash खेल. क्लैश खेल. बोला ना, देखो What? क्लैश खेल. No, it times Khalid, no? Kalash खेल. ये कैश के खाली. Yeah. समझ में रहा तुम context. Anyway, Yeah. So let me ask you this, Khalid, a bit. Amna was saying कि कभी-कभी इस तरह जो narrative बनाया जाता है Muslim community में, sometimes it hurt the Muslim community. For example, like if you look at the Hindu community, if the Hindu community was not openly talking about caste, if the Hindu community was not openly announcing caste, at the end of the day, that will hurt the Hindu community itself, because the depressed classes and the oppressed community जो हिंदू community में है, जो caste system में सफर करते हैं, उनको लगेगा कि भैया यहाँ तो हमारा कुछ redress होने वाला, तो community छोड़ देते हैं. So if you don't address openly the issues within a particular community, at the end of the day, those issues are going to hurt the community. And then you bring that issue to Muslim community. And if you look at there's often a discussion in India ki moderate Muslims idhar hai. Where are the moderate Muslims? Where are the reformist Muslims? The way Hindus feel emboldened to speak out against caste atrocity and the problem of caste in India, why aren't there more Muslims who feel emboldened to challenge some of the status quo issues that the Muslim community faces? Because not challenging those, you would think applying same logic that not challenging those issues will ultimately hurt Muslim community, na? Because economically bhi agar dekho to compared to the Hindu community, economically थोड़े backward हैं अभी Muslim community. Educationally भी they're lagging behind the Muslim community, even behind Christian community for that matter, they're lagging behind. So जब तक issues को openly address नहीं किया जाएगा in the marketplace of ideas, ultimately it hurts the Muslim community. So where do you think? And again, India is a very data poor country, तो हमारे पास कुछ hard data मौजूद नहीं है कितने moderates हैं कितने extremists हैं. But anecdotally I'm talking about कि anecdotally where do you think moderates are? Do you feel like it's just a question of they feel afraid to speak up, or do you think they buy into what the narrative or the snake oil that OAC is selling? See, I'd like to answer it a little different. The only difference and the only grudge I have against my community is that, if you pick up most of the major world faiths, and Muslims are the second largest community in the world after Christians. If I pick up the top four, like Christians, Muslims, Hindus, and Buddhists, and all that, if anything were to be done by a radical person from those faiths, then you have people from those faiths not saying that leave the ashamed wala facts, that okay, this is wrong, and there is a sense of accountability we are ready to take, and we are ready to condemn this, right? In our case, tragedy is, and this is the harsh truth may offend people, that instead of going outright condemnation for some attack which you have nothing to do with, right? You don't want, you are someone who will be a victim of that attack, your first reaction is more of defense ki nahi, मेरी आइडियोलॉजी कुछ गलत नहीं किया, देख भाई मत बोलो, राइट? लाइक अटैक में भी विक्टिम, आपको विक्टिम में भी विक्टिम हुई,
Yeah. So that, of course, is I see that as a global thing. That is where moderates fail. Like आम मर्रा की जो जिंदगी गुजारे हैं, want have dreams, बड़ा घर, like step by step social society. So that Yeah. needs to change, and that I think India is a very good place for that. Social media में जितनी भी मैंने ये 6-7 साल देखा, आई एम नॉट सेइंग बहुत बड़ा फिगर है, हजारों में ही है, लेकिन है ये हजार हैं, और हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ही लेना पड़ेगा कि जब ऐसा कुछ हो तो हम उसको कंडेम करें विदाउट फीलिंग अशेम अबाउट इट, और कहें कि नहीं हम आइडियोलॉजी को नहीं मानते, हम इस इंटरप्रिटेशन को ही मानते, राइट? तो बदकिस्मती ये भी है शाम, like I met the late Padma Bhushan Mr. Maulana Wahiduddin Khan. I'm very positively influenced by his messages and all. And in fact, a lot of people, when they quote on the sensitive issue of India, he's the first to speak about settlement, saying that the temple has to come there, right? I mean, it's very bold in the 91 column, Yeah. and even his positioning of all this. अब इस चीज के लिए हम क्या किसी को गलत माने जब हम ही उनको इतना क्रिटिकल मार्क्स अपनी कम्युनिटी में ही नहीं देते? मैं मानता हूँ कि 10-15% उनको देते होंगे, 20-25 करोड़ की आबादी है सुनाम की एरिया में, लेकिन ये क्वेश्चन हम इसको भी इस पे बिंदु की हिस्ट्री डाल सकते हैं कि उन इतने विजनरी बड़े को इतनी मॉडरेशन की बात कर रहा है, आपको एक पीसफुल इस्लामिक स्कॉलर है, नेशनलिज्म की बात कर रहा है, जो आपको कह रहा है कि आपको कैसे रहना है कम्युनिटी में, इन इंडिया की फेस कर रहा है, इतना फिलोसफिकल अलग लेवल पे मजहब को छोड़ के भी, तो हम ही नहीं, हम उसको ज्यादा नहीं देते some radical picture। तो पहले तो इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे लगता है बैलेंस से आएगी कि अगर आपको ये अच्छी बात है कि हिंदू में क्रिटिकल मास है जो आपके साथ खड़ा रहा है कि नहीं, अगर मेरे कम्युनिटी में से कोई एक्सट्रीमिस्ट आपके खिलाफ बोलेगा, मैं हूँ, राइट? शाम है, कुशल है, ऐसे बहुत अच्छी बात है, एक सिविलाइज है। तो जब हमारे यहाँ से भी हमें वो कहना चाहिए, उस टाइम हम ये नहीं कहना चाहिए ये हमारा रिएक्शन है, शाम आस्किंग फॉर इट, तो वो एक बैलेंस है। जब आप दूसरे की गलती देख सकते हो और जो अपने साइड ये भी गलत दिख लो ना, तो सडनली आप देखोगे आप बैलेंस रहोगे, आप सीज मेंटालिटी में नहीं होंगे। तो उसके बाद वो पैन नेशनलिस्टिक फोर्सेस की बात आती है, लेकिन पहले आप खुद तो कुछ करो। तो ये ऐसे दिस इज हाउ आई सी। Sami, and let me ask the other two, Ahmed and Amana, मैं अमाना आपसे पहले पूछता हूँ कि क्या लगता है आपको कि what needs to change for you कि the number of moderates जो हैं Islamic society में वो बढ़ें, या फिर जैसे हिंदू सोसाइटी में आप देखो कि number of moderates are pretty high, क्या what needs to change कि वो उस लेवल पे moderates जो हैं, reformists जो हैं, वो मुस्लिम सोसाइटी में भी उभर कर आए, इसके लिए क्या करने की जरूरत है या क्या चेंज होने की जरूरत है? सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म मिलने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि पहले मुस्लिम वॉइस नहीं थे, आरिफ मोहम्मद साहब ने रिजाइन किया था जब शाहबानो केस हुआ था, राइट? तो जो लोग सही डायरेक्शन में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर सोचते आए हैं, उनको हमेशा पे करना पड़ा है, उनको वो सपोर्ट नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए था, राइट? तो एक तो हमारी खुद की कम्युनिटी में एक माइंडसेट है, प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, उस कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स ही डिस्कस नहीं किए जाते। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं थिंक टैंक में काम करती हूँ, तो मुझे आर्टिकल वगैरह लिखने हुए हैं। मैं का नाम नहीं लूंगी, बट मैं फेक न्यूज़ पे आर्टिकल लिख रही थी, एंड एक फेमस फैक्ट चेकर है, उनसे मैं मिली, उनका इंटरव्यू ले रही थी। तो उससे बात होने लगी, तो उन्होंने बोला हाँ बहुत सही प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे जो रिएक्शन दिया था, वो रिएक्शन है कि अम्ना क्या तुम सारी बात पब्लिकली बोलती हो? मैंने बोला ये प्रॉब्लम है, मैं कभी बोलूंगी, यहाँ भी मैं बोलने को मिला। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा मत करना, अभी संघी लोग पावर में है, एंड वो लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे तुम्हारी कम्युनिटी के अगेंस्ट, एंड तुम तो अब तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम बहुत बड़ी विक्टिम हो एंड ऑल। मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मैं किससे मिल रही हूँ, एक बातचीत हो रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ तुम्हारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली विमेन को लेके, पैट्रियार्की है, वो मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम विक्टिम हो और तुम ये चीज एड्रेस मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे ये बात समझ में आई कि जो इस इंडस्ट्री में काम करते होंगे और जो मॉडरेट होंगे, उनको वो इकोसिस्टम स्टार्टिंग से ही पुश करने लगता होगा, डोंट स्पीक, चुप हो जाओ, और क्या बोलो तुम विक्टिम हो, बोलो कि तो एक वो इकोसिस्टम जो पहले से बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा दुश्मन है। अभी कल ही कोई मैडम जी थी, मुझे रियल नहीं पता कि वो हिंदू की डिटेल है नहीं है, बट उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट नहीं करती हूँ, राइट, लेकिन अगर मुस्लिम ऐसे रहना चाहते हैं तो हमें डिटेट नहीं करना चाहिए। क्लासिक इंडियन लिबरल रिएक्शन है, ऐसे हॉल फेम रिएक्शन। और मेरा खून खोला, मैंने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे घर की, खानदान की या पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़की है वो इंसान नहीं है, वो एक लिखी बच्ची नहीं है, उसके साथ तो कुछ जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा है। तो क्या मुस्लिम में वो चीज जारी रहेगा जिसमें लड़कियां विक्टिम बनती होंगी? बोलोगे नहीं तो बोलोगी इंडिया तो यही है, वो ऐसे रहने दो, हम नहीं जाएंगे बोलने के लिए। फिर वो अपने आपको फेमिनिस्ट भी बोलती है, मतलब वो कहाँ स्टैंड करती है बिल्कुल समझ नहीं आता। जब हिंदू बिल वोट के अंदर परिवर्तन हो रहे थे, उसमें तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, बहुत से लोग भी जो शायद उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, स्टेट ने उसको कहीं ना कहीं लाया, स्टेट ने विल पावर दिखाया कि नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मोरालिटी है हम उसको लाए कम्युनिटी के अंदर। तो क्या इंडियन मुस्लिम इंडिया की सिटीजन नहीं है? क्या इंडियन मुस्लिम के अंदर भी वही परिवर्तन नहीं आना चाहिए? आप अपने लिए, अपने बच्चियों के लिए, सबके लिए जो चाहिए वो हमारे काम के क्यों नहीं चाहते हो, और फिर आप हमारे ही काम के मसीहा बन जाते हो, राइट? तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो इकोसिस्टम बन रखा है ना, तो एक तो हमारी कम्युनिटी से ऐसे वॉइसेस नहीं आती, और अगर कोई आता है तो कभी उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ये दो सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से। एनीथिंग टू ऐड, अहमद? हाँ, लॉट्स टू एक्चुअली। तो दिस बात करें प्रोग्रेस की, अपलिफ्टमेंट की,
तो एक बात मैंने नोटिस की कुछ मुसलमानों में जो बैकवर्ड जो रहते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्ड भी है, इनके बारे में बताऊं, लेकिन बैकवर्ड की मेन प्रॉब्लम ये लगती है मुझे कि बहुत इंसुलर हैं ये लोग। इंसुलर मतलब दूसरों से मिलना जुलना, दूसरे कौमों से मिलो, हैव एन ओपन एंड उनसे कुछ सीखो, शायद चीजें हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं वो नहीं, हम नहीं मिले उनसे, नहीं मिल अपने अपने, सो दे बेसिकली वार्मिंग द सेम इन्फॉर्मेशन टू ईच अदर, एंड तो ऐसे बैकवर्ड रहते हैं कम्युनिटीज। तो कुछ है कम्युनिटीज जैसे कि मैं, जैसे किशन ने बिल्कुल ठीक कहा कि देयर इज नो डेटा इन इंडिया एनेक्डोटली। मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस है मैं बताऊंगा, कुछ प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स भी हैं जो ने देखा, जो काफी तरक्की कर रहे हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, और मतलब बड़े शहरों में पहले एक समझे मोनोकल्चर की तरह बन चुका है। अब बता नहीं पा कि कौन मुसलमान है इस टेबल पे बैठे, कौन क्रिश्चियन, कौन हिंदू है, मतलब दे इंटीग्रेट वेरी वेल, दूसरों से मिलजुलना आपता सब रखते हैं, तो ऐसे लोग काफी तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग हैं जैसे कि मेरे पास एक माना साइकिल थी कुछ साल पहले, घर के से पंचर वाला था, रेप पंचर वाला, उसके पास एक बार गया तो भाई हालत काफी खराब है री, कुछ मदद कर दो मेरी, तो एक सोशल वर्कर को ले गया उसके पास, तो उससे ऐसे ही सवाल कर रहा, पूछा कि आपकी हालत क्या, कैसे बच्चे, आपके बच्चों को शायद हम नौकरी दिला सकते हैं, कितने बच्चे आपके, 5 बेटियां, जो वाले 5 बेटियां, तो आपकी बेटियों को शायद हम नौकरी दिला सकते हैं, कुछ सही क्लास जॉब, नहीं मैं अपनी बेटियों को हम पे भेज सकता। अबे भीख मांगेगा लेकिन अपने बेटे काम पे भेजेगा। ऐसे क्या सोच वालों का बैक सोच वालों की कौन क्या मदद कर रहा है, हम मत लेके जा रहे हैं के पास, भाई ये जरिया है तुम्हें पॉवर्टी उठाने का, निकलने का, यू कैन नॉट हेल्प पीपल हु डोंट वांट हेल्प देमसेल्व्स। तो ये सोच बदल जाए, बैकवर्ड सोच, तो कुछ किया जाता है सबों का, गवर्नमेंट की वजह से बहुत कुछ दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए, अब ये लोग फायदा नहीं उठाए उसका, कौन क्या सकते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी जो अहमद ने बोला, मैं जिन लोगों की ये माइंडसेट है ना, वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं गांव में रही हूँ तो मैं एक चीज देखी थी कि जैसे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहते थे, तो उनसे पूछती थी क्यों, क्योंकि गांव के अंदर क्या है, उतना लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसके घर में ज्यादा लड़के हैं वो ज्यादा पावरफुल है, बस खेती करने के लिए उनके पास हाथ आ जाते हैं, तो उनके अपने डिफरेंट रीजन भी होते हैं कई बार। वहां पे हमारे स्टेट क्या करता था, स्टेट वहां हमेशा कैंपेन चलाता था, स्कूल में जाके बताता था कि नहीं क्यों अच्छा है छोटा बच्चा करना, सारी चीजें समझाता। तो ये एक प्रोसेस होता है और इसमें कई साल लगे हैं, इंडिया में चेंज आए हैं हिंदू कम्युनिटी में या गाँव में या छोटे शहरों में, उसमें एक बहुत सालों की 5 वर्ष योजना बनती है ये पॉलिसी की, और बहुत सालों का काम है, लेकिन वो सालों का काम छोड़ो, वो 1 साल का काम मुस्लिम कम्युनिटी नहीं हुआ, इनको कुछ नहीं चाहिए रहने दो, वो बोलते कि जिस कम्युनिटी को ऐसे रहना है रहे दो ना, हम क्यों डिक्टेट करें, वो देख लिया ना, स्टेट का काम यही है कि वो पॉलिसी बनाए, समझाए, लोगों को स्लो प्रोग्रेस के रास्ते पे ले जाए, तो वो कभी मुस्लिम कम्युनिटी के करने ही नहीं देंगे। और एक चीज जो हमारे कौम में जो एलिट है, अशराफ बोल लो जो भी बोल लो, उन एलिट को कभी मतलब ही नहीं पड़ी है कि जो कॉमन नॉर्मल इंडियन मुस्लिम है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वहां पे चेंजेस कैसे आएगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ पूरी एंजॉय कर रहे हैं। आपका नमाना यूब, आपको लगता है वो लाइफ नहीं जीती अपनी, आपको लगता है वो 21 साल में शादी करेंगी या 18 कर लेंगी, नहीं, लेकिन जब बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी की बाकी लड़कियों की, कभी वो नहीं खुलेंगी, पहला लाइफ भी कभी मुंह नहीं खोलेगी। तो ये चीज है ना, इसके पीछे मुझे अभी तक रीजन समझ में आया, मुझे लगता है इसके पीछे रीजन यही है कि जो अशराफ के लोग हैं वो उनका कनेक्शन नहीं है, पहला, दूसरा उनका खुद का करियर, उनका एक क्वेश्चन बोल देता है कि तुम्हें तो बोलना नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ बन के आओ, अदरवाइज हम तुमको जगह देंगे। तो एक चीज एक्चुअली मुझसे तो तुमसे पूछनी थी कि आप बात करते थे कि जो पशमीना कम्युनिटी है, generally speaking, more than the Ashraf community, they've been able to keep themselves connected to their native culture, traditions हैं काफी सारे अभी जो native culture से जुड़े हुए हैं, शादी वगैरह में जो आप नई की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आप उसको कैसे रिकंसाइल करते हो तबलीगी जमात जैसी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि एक इतनी बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और उनका गोल है काफी एक्सप्लिसिट कि जो इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी है उनको और इस्लामाइज करना है, एंड दैट कैन समटाइम्स मीन कि उनको बेसिकली और एबाइज करना है, जो उनके नेटिव ट्रेडिशंस हैं, नेटिव कल्चर्स हैं, उनसे थोड़ा और अलग करना है, बिकॉज अगर आप नेटिव ट्रेडिशन से जुड़े होगे तो इस तरह के मुसलमान होगा, फिर वाटर गेट अ लिटिल बिट डीड, जो मेवाती मुस्लिम्स का एग्जांपल्स देख लो, इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल। I'll come to you as well, Ahmad. क्योंकि I've been a member of the Tabligh Jamaat, और उनको अरेज करने का ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा और के बारे में। Let me go to Amara first and then to Ahmad. How do you reconcile the Tabligh Jamaat? मैं तो तबलीगी जमात में की मेंबर नहीं हूँ, मैंने इनके बारे में पढ़ा, बट मुझे ये पता है कि कई बार जब लोग आते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो मुस्लिम बच्चे हैं ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ो, भाग आते हैं, ये पढ़ जाएंगे हम। ठीक है, तो तबलीगी वाले आगे भागो भागो। व्हाइट पुलिस कहते हैं उनको, White police. अब ये लोगों को नहीं पता है कि देयर सेक्शन मुस्लिम ऑल्सो सोचते हैं कि पीछे छूटे, राइट? तो वो क्या है कि देखिए एक बात बता रही हूँ, वो ये आपको बोल के नहीं आ रहे हैं बोले कि हम तुम्हें ये चीजें खाने वाले हैं या तुम्हें हम रेसिपी बनाने वाले हैं, वो आते कि हमें धर्म सिखाने वाले हैं, एंड एवरीबॉडी लाइक कि जो धर्म अच्छी बात है, खुदा से जुड़ेंगे और ज्यादा। अब वो धर्म के अंदर क्या सिखाया जा रहा है, वो चीजें जो है वो डिटेलिंग है, वो समझना पड़ेगा क्यों कहाँ ले जा रहा है। वो ये सब सिखाते हैं कि आपको जहाँ पे जो भी कर रहे हो मत के बराबर है, इसके बाद वाली जिंदगी इंपॉर्टेंट है, बट उनके लीडर खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये कंट्राडिक्शन भी किसी नहीं होता।
राइट। Yeah. खुद उनके अंदर पॉलिटिक्स हो जाते हैं कि उसका हेड बनने के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो नीचे तबका है ना, उसको हमेशा सिखाते हैं कि तुम तो हमारे अंदर सबमिट रहो, तुमको ऐसी ही ज़िंदगी जीनी है। एंड मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रोड़ा है मुस्लिम सोसाइटी में प्रोग्रेस लाने के खिलाफ एक रोड़ा है। जो कल्चर की जो बात कही है मैंने, कल्चर बहुत कुछ बदलने के बाद भी बहुत नहीं बदला है। एक आप अगर जाओगे बिहार में तो वहाँ पे आपको अभी मुस्लिम औरतें मिलेंगी जो सिंदूर लगाती हैं। साउथ में लड़कियाँ मंगलसूत्र पहनती हैं, राइट। हल्दी पूरे इंडिया में हर शादी में हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू की हो। बात ये है कि हम मुस्लिम खुद नहीं पता ये बात। हमें नहीं समझ में आता कि रिलीजन और कल्चर कुछ अलग है या नहीं है। हमारी कल्चर है वो है मिडल ईस्ट का। हमारे दिमाग में जो डाला जा रहा है कि तुम्हारा तो एक कल्चर है। इवन बॉलीवुड भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ. राइट, कौन पहनता है? आप गाँव में जाओगे तो आपको मुस्लिम औरतें साड़ी पहने हुए, धोती पहने हुए दिखेंगी। अब आ गए हैं बुर्का वगैरह काफ़ी, लेकिन वो फिर भी वो शरारा वगैरह उतना नहीं पहनती जितना बॉलीवुड दिखाया जा रहा है। तो ये जो है ना कि हम पर इम्पोज़ किया गया कल्चर, हमें कभी समझ में ही नहीं आ गया कि ये कल्चर हमारा ये है बेसिकली। एक गुजराती मुस्लिम का कल्चर गुजराती हिंदू जैसा मिलेगा आपको। एक यूपी मुस्लिम का कल्चर यूपी के हिंदू जैसे मिलेगा। तो ये जब जो बातें हैं ये हमारे दिमाग में कहीं एड्रेस ही नहीं होती है। देन वो क्या करते हैं कि एक साथ तो चेंजेस नहीं आते, वो चेंजेस की कब से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो पैम्फलेट वगैरह पब्लिश कर दी है। अभी मैं देख रही थी पिछले साल उन्होंने पैम्फलेट डाला कि शादी क्या करो सिंपल करो। तो वो बहुत अच्छी बात है, शादी में सिंपल करके अंदर उन्होंने क्या टेलिंग डाली थी, हल्दी का रस्म बंद करो, पटाखे जलना बंद कर दो एंड मेहंदी की रस्म बंद कर दो। मतलब इस संगीत भी होता है, बहुत सारे मुस्लिम शादियों में संगीत होती है जो बेसिकली हिंदू कल्चर है, तो वो बंद कर दो। अब वो हमें ये नहीं बोलने की बेसिकली वो चाहते हैं कि हम अपने पुराने कल्चर को छोड़ दें। वो बोल रहे हैं कि हम तो आपको खाली शादियाँ ईज़ी हो कि लड़कियों के लिए ज़िंदगी आसान हो। तो ये गेम होता है, ये जो प्रोसेस है वो इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, बहुत ही तरीके से आपकी ज़िंदगी में आता है। Ahmed, what were you say? हाँ, कुरान में एक आयत है, ला तुहरिमू मन हलाका व तुहल्लिलू मा हरामा। मतलब हमें जो हलाल किया उसको हराम करो, हराम है उसको हलाल मत करो। अब जैसे हमने पॉइंट बनाया इसके बारे में, मंगलसूत्र जो साउथ में पहनते हैं लोग, अच्छा कहते हैं लोग उसे, हाँ? इसके बारे में मज़हब में कुरान कुछ लिखा नहीं है। Right. तो तुम कौन आए हैं रूल्स? डजंट तुम पहनो ना पहनो ये कुछ नहीं। तो हाँ, ये थोड़ा ये मुद्दा भी आया नहीं, नोबडी केयर अबाउट दैट। मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस जो रहा है तबलीगी जमात के साथ। सवाल का पॉइंट क्या, वन सेकंड बताओ। मैं सवाल का पॉइंट ये था कि माना कह रही थी कि जो पारंदा कम्युनिटी है एटलीस्ट वो एक्चुअली अपने नेटिव कल्चर से फिर भी काफी जुड़ी हुई है। एटलीस्ट इंडिया के अलग-अलग जगहों में जो ट्रेडिशंस है, प्रैक्टिसेस हैं, काफी भी अभी जुड़ी हुई है एज अपोज्ड टू अशराफ कम्युनिटी। मेरे How do you reconcile that with मेरा तबलीगी जमात? एनेक्डोटल एक्सप्लेन कि मैं तबलीगी जमात में रह के हूँ। ये फर्क नहीं पड़ता जब तक आप इस्लाम से ज्यादा एज लॉन्ग एज इट्स वेरी एक्सप्लिसिट एंटी इस्लामिक, फर्क नहीं पड़ता। तो लोकल कल्चर पे अटैक करना तो देखा नहीं। But if you see the example, जो सबसे काफी prominent example, for example, जो मेवाती मुस्लिम का एग्जांपल है, जो कि गौ रक्षा किया करते थे, गौ प्रोटेक्शन किया करते थे, उनकी शादियों में मंगलसूत्र डाला जाता था, सिंदूर लगा, इवन आफ्टर कन्वर्जन सिंदूर वगैरह लगाया जाता था। वो अपना दिवाली, होली वगैरह भी मनाया करते थे, ईद भी मनाते थे, दिवाली भी मनाते थे, होली भी मनाते थे। Now one would think कि being a composite culture जैसे इंडिया है एक composite culture, उस तरह के composite culture में इस तरह की चीजें सेलिब्रेट करनी चाहिए कि भैया मुस्लिम देख खुला दिवाली भी मनाता है और प्यार से ईद भी मनाता है। That's objectively a positive thing. Then in comes the तबलीगी जमात that says नहीं आप शिर्क करो, ये गलत कम है, आप इस्लाम से दूर जा रहे हो। So you have to give up Diwali, you have to give up Holi, you have to give up Mangalsutra and Sindoor, and you have to become more Islamized, which by the looks of everything that's happening in Mewat, Islamization basically means more Arabization. So कैसे reconcile करें इसको? नहीं, मैं तो कभी ऐसा सुना है यहाँ लोकल तबलीगी जमात जो कर्नाटक की है, सारे क्यों ऐसे कुछ क्या नहीं उन लोगों ने, मेवत का पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कैन नॉट कमेंट ऑन इट। या और जब अरब कल्चर की बात कर रहे हैं तो अब लोग हैं दोज़ आर कॉल्ड शाफी मुस्लिम्स। यहाँ हनफी होते हैं इंडिया में मोस्टली, और केरला में काफी शाफी होते हैं। मतलब इनका नाम नमाज पढ़ने के तो थोड़े फर्क होते हैं, जैसे कि जब नमाज पढ़ते हैं हनफी लोग हाथ यहाँ रखते हैं पेट के पास और शाफी लोग यहाँ रखते हैं, थोड़ा माइनर डिफरेंस हैं। तो इंडिया का एक यूनिक कल्चर है मुस्लिम का, उस पे कभी इन्हें अरब करने की कोशिश नहीं की as far as I see, जहाँ तक मैंने देखा। Okay, so let me bring Khalid in as well, because that's, you know, if you look at ground reporting, and I think Swati Ghosh Sharma has done some fantastic work, especially in these fronts. उसपे स्वराज्य की अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे, you can very clearly see कि जो कल्चरल चेंज आया है within the Mewati Muslims, where in the 20s and the 30s there were a lot more. You can say there's a much more of an integrated community, very very integrated into the Indian culture, into the Indian mainstream, whatever you want to call. और अभी अगर देखो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रहे हैं मेवात से कि the tension, the problems, the violence that is happening between the Mewati Muslim and the Mewati Hindu community, so it almost seems 1920 से आज देखो जमीन आसमान का फर्क आ गया है in the Mewati Muslim community. It seems like the Tablighi Jamaat, at least if not completely to blame, but they've had a role to play in the change that has happened in the minds of Mewati Muslims. So, you know, uska how to reconcile that, Khalid? Because do you think that there's an issue of the Indian Muslims that are told, whether by leadership, whether by All India Muslim Personal Law Board, whether by Tablighi Jamaat, the way you can be a good Muslim is to separate yourself entirely from any Indian cultural traditions or your whatever your native traditions might be?
No, that definitely is a problem. I mean, the Arabization did happen post the petrodollar boom, and we spoke about, in fact, the ban of Tablighi Jamaat. It was our third episode itself, fourth episode itself. We got in Arsha Lake Swalagin and we spoke about that. And while growing up, also, one has seen that Arabization has taken place. Luckily, now these events in Saudi become liberal, so Indian Muslims will also now have to figure out that what happened. So obviously things that way positively will happen, but damage in 3 decades did happen. They were asked to sort of cut ties with their roots, and culture was mixed with religion, and those kind of apprehensions within the majority community need to be addressed, and they should not be mocked at all, which this alliance definitely does. The Muslim Separatist, the Communist Alliance does definitely do that, and there is a history. See, at the end of the day, looking at a large scale, it's the truth, it's the reality of the world. There is a civilizational clash. Right. There has been a civilizational clash, and that has been there amongst all the major world ways, and different capacities, different eras it exists. So one should go to a root cause and speak about it. And the onus definitely is not on the majority, because it's not they who are wanting to shed ties and do that. So that definitely the introspection needs to come from us, and also this whole warp thing of secularism, right? I mean, if there are festivals are face, we get wish and all, but then you see that suddenly you see that some people from our faiths won't do it or other faiths, So it can't work that way. So if the person from the Hindu community says, no, I'm done with this, I mean, take it on chin. I mean, it is right, and I want you also do the same. So this whole thing, secularism in India has to be put on the shoulders of the Hindu community. I completely reject it. If at all it has a value system, it should apply to all 8, or it should not apply to anyone. So ये बहुत हो गया कि how secular are you guys? अरे आप अपना सर्कल का भी तो सर्टिफिकेट दे दीजिए ना, आप कितने सेकुलर हो, all that. और हिस्टोरिकली तो इतना अच्छा आपने प्रमाण नहीं दिया है, राइट? अभी अगर देखा जाए तो आपका एस्पिरेशन यूएई होना चाहिए, आपका एस्पिरेशन टर्की, अर्दोगन का रैडिकलिज्म छोड़ के तुनीसिया होना चाहिए, तो है तो आपके पास एग्जांपल्स, राइट? लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप कॉन्स्टेंटली एक कन्फ्रंटेशन मोड, विक्टिम मोड, तो फिर सॉरी प्रॉब्लम शायद मेजॉरिटी में नहीं है, फिर शायद आप ही अगर हमेशा इसी पैटर्न में रहना चाहते हो, आप देखिए ये जो कांस्टेंट विक्टिम का है, ये बहुत डेंजरस कम्युनल चीज है, इसको छुपाया जाता है कि इफ आई एम कांस्टेंटली सेइंग कि आई एम विक्टिम, देन दैट मींस देयर इज एन ऑप्रेसर, राइट? तो रियलिटी कितनी डिफरेंट है चीजों से, मतलब हजारों सेक्टर्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड की सबसे डाइवर्स कंट्री है, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी डाइवर्स है, तो जो हजारों क्या अरबों जो लाखों सेक्टर हैं इसमें, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, जो आप उस बाद ब्यूरोक्रेसी है, सब में तो है मुस्लिम्स, राइट? अब हर चीज जैसे हमने कहा कि कहना कि नहीं हमारा क्या, आप भी तो देश के लिए, आप भी तो जरा सोचिए कि दूसरे साइड से अगर कोई कुछ कह रहा है तो उनके भी जेन्युइन कंसर्न्स हैं, राइट? तो उस दृष्टि से देखिए कि हाउ यू कैन एक्ट एज ब्रिज, हाउ यू कैन गो फॉर रिकंसिलिएशन, राइट? लेकिन ये और चीज है ना, एंड ये तो प्ले कर रही है इन साइड को, एग्जांपल और ये होता भी है, किसी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कुछ कह दिया, ठीक है, उस एक चीज को लेके आप पूरी हिंदू कम्युनिटी को जनरलाइज करते हैं, फिर आपकी कम्युनिटी में इडियट्स भी हैं, सेल्फ लोदर भी हैं, आई एम शेम वाले, और वो कहते हैं कि देखिए यार तो हम बहुत खराब हो रहे हैं, क्या हो गया हमारी कम्युनिटी को, तो अब लेकिन अगर यहाँ से कुछ किसी और कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से कोई एक्सट्रीम्स कुछ रहे, राइट, और पैटर्न भी आप देखो, तो आप कहोगे यार लोन केस है यार, अब आप क्या पूरी कम्युनिटी को इसे जनरलाइज करेंगे? तो अगर वो चीज उस कम्युनिटी का प्रिंसिपल है कि आप रेडी हो जनरलाइज करने को, तो फिर सेम चीज अप्लाई कीजिए ना, वो तो सिर्फ हिपोक्रेसी आपकी गिना है, राइट? और रहते हैं आपके साथ, आप रहते हो 1000 साल हो गए, तो ये तो मुझे वो लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अनफेयर, और अगर सिविलाइजेशनली भी देखो 200 कंट्रीज है प्लैनेट पे, देयर आर 50 इस्लामिक नेशंस, 50 ऑड नेशन, एंड एक ही तो है जहां पॉलिटिक्स मेजॉरिटी है, ग्लोबल तो माइनॉरिटी है, राइट? यहाँ भी आप कह रहे हो कि अगर आप सिर्फ अपनी फेथ भी शो करोगे तो मुझे भाई ऑपरेशन लगा है, तो कहाँ ये फेथ कहाँ शो करेंगे, राइट? एंड आल्सो सुन के अजीब ही लगेगा बाहर के कमेंटेटर्स को सुन के, कहेंगे ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी हमेशा डिफेंस में होती है, बट है और दूसरा बात यही है, ये तो डेटा भी मैंने फेस्टिवल भारत भी कहा, जितने अब स्टेट्स हैं हमारे 29 है, उसमें भी बहुत सारी एब्राहमिक मेजॉरिटी हैं, तो पता है मतलब और कितना टॉलरेंस, मतलब ये ना एक पंचिंग बैग सा हो जाता है, मतलब मैं भी क्रिटिकल अगर आप हो, आप कह रहे हो हाँ जी ये कुछ एलिमेंट है हिंदू कम्युनिटी में, आपको क्लेम करना, मैं मानता हूँ, वहां तक मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कहो कि जो मेरे हैं उसको तो भूल जाओ, इनफैक्ट उनको सेलिब्रेट करो, राइट? उन्हें मूवीज बनाओ, माफिया डॉन को एस्पिरेशन बना दो, राइट? और फिर कहो कि और फिर हर एक क्रिकेटर्स, बॉलीवुड, आर्मी, पुलिस, ब्यूरोक्रेट, मतलब इसके बाद ये रिबिंग, आई थिंक अब उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है, पिछले इकोसिस्टम ने इतना पैम्पर किया था ना, तो आप लोग कहते हैं नहीं पैम्पर उस चीज को, तो आप वो बढ़ा सकते हैं, देखिए क्या हो रहा है, कोई टॉलरेंस नहीं है, एक 5000 साल की सिविलाइजेशन किसी एक रेजिम से नहीं है, और मतलब हर चीज पे ठीक ही है, और एक्सट्रीमिस्ट कम्युनिटी में होता है, लेकिन आपको ये नहीं बर्दाश्त, वो अब अपना सेल्फ लोथ नहीं कर रहे हैं, तो
So और ये हाँ, कल्चर right, रूट्स छोड़ने की बात कर रहे हैं श्याम, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किस मखसूस पहलू पे, विच पर्टिकुलर एस्पेक्ट यू आर फोकसिंग ऑन। जैसे कि जो मंगलसूत्र का ट्रेडिशन है, वो तुम्हें अच्छा बोलते हैं हमको यहाँ, कोई भी मुसलमान तबलीग जमात चित भी कटने हो, ये कभी बोलने वाला नहीं कि अरे औरत ये हिंदुओं में हरकत क्यों कर रही है, क्योंकि उसको हिंदू कल्चर की तरह देखा नहीं जाता। कॉमन कल्चर ओवर इन द साउथ। okay. मंगलसूत्र अच्छा हर कोई औरत पहनती है यहाँ पे, साड़ी हर कोई औरत पहनती है, कोई ये नहीं कहा कि हम्म, हिंदू की लाश क्यों पहने, वैसे कुछ नहीं होता। लेकिन ये क्या कहते हैं सिंदूर, वो यहाँ नहीं होता मुसलमानों में। अगर sure. वो किसने किया है पे, शायद उसे मुखालफत करें, उसका ऑपोजिशन करेंगे ये लोग यहाँ के। तो हम्म, इट्स मोर ऑफ अ रीजनल थिंग आल्सो। जैसे कि मैं देखा है नॉर्थ इंडिया साइड में मुसलमान जो दोस्त हैं, लड़कियां बिंदी लगाती हैं, हम्म, ऐसा सुनना मुझे थोड़ा अजीब लगा है वो देखे हम्म, कि यही वाले हरकतें कर उस रहे हैं। उस तो हाँ, ये भी एक उस इफेक्ट है उसका। उस हिंदी के ऊपर है, उसके ऊपर भी काफी कुछ है कि हिंदी लगाना चाहिए, हिंदू लगाते हैं। नहीं, यहाँ right. सोनू को लगा रहे हैं, यहाँ नहीं, तो लड़कियां नॉर्थ में होती हैं। लड़कियां लगाती है, लेकिन उसके हाँ, ऊपर देखो एक चीज है, मत वो कुछ एक साथ नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप हम्म, होता है ना। पहले एक चीज बदलेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड। वो देखिए मतलब कहते हैं ना, अपने जो ना लक्ष्य है उसको लेकर के वो बड़े पक्के हैं। वो 100 साल लगेगा, 200 साल लगेगा, वो जाएंगे उस पे। तो अभी हमें लगता है कि तो ऐसा तो नहीं हो रहा, लेकिन वो स्लो चलेगा। Yeah. हम्म, So let me to conclude today's discussion. Let me bring it to this last point, and I want to talk about your show for a little bit. Well, okay. Finally, here around the world, there's this new concept emerging. There's an increased belief in the idea of the civilizational state. India में भी आप देखिए कि बहुत सारे लोग हैं that are in favor of the idea of the civilizational state. And how I at least think how the sort of modern Hindutva movement at least sees the civilizational state. They see it as a civilizational nation, a secular state. A state which provides equal rights and duties to every citizen, regardless of religion. But for the nation, there's a cultural understanding. भाई हम क्या है culturally, हम क्या है civilizationally, वो understanding है, और उस culture civilization को हम develop नहीं करना चाहते, और हम separate करना चाहते हैं. But in terms of our constitution, our laws, वो सब पर बराबर तरीके से apply होते हैं, which I see a pretty decent compromise for what the idea of India should be. So in a country जहाँ पर that idea is gaining momentum, you know, one of the things that you hear from within the Muslim community is that कि इस तरह के देश में हम बहुत खतरे में आ जाते हैं, our community come under great danger. How do you guys, the three of you, just in your personal experiences, how do you see anything changing for yourself in a country that sees itself increasingly as a civilizational state? Let me, I'm Aman से शुरू करता हूं, then I'll come to Ahad and Khalid. मोस्टली कोई चेंज इंडिया में देखा है मैंने, तो मैं नहीं बोलूंगी, एक ही चेंज देखा है कि आई एम वेरी हैप्पी फाइनली मुस्लिम वुमेन को के फेवर में लॉज आए। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। अब बात रही ये जो सिविलाइजेशनल चेंजेस की बात है, कल्चर की बात है, यहाँ पे एक चीज बोलूंगी कि इसमें अभी उतना डिस्कशन नहीं हुआ है। Sure. डिस्कशन इन द सेंस, एक मैं हिंदू कम्युनिटी की फेयर मानती हूँ कि हमेशा उन्होंने भी अपने रिलीजन को अब्राहमिक लेंस से ही दिखाया। तो मुस्लिम या अदर कम्युनिटी के नजर में हिंदू एक धर्म है, एक कल्चर नहीं है। तो जब आप उसको बोलते हो कि नहीं तुम कल्चर वाइज हिंदू हो, तो वो ऑफन में ले लेता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था अभी वेफेयर आज से 10 साल पहले मुझे नहीं लगा कि ये कल्चर जैसा कुछ होता है। और मेन हिंदू इज रिलीजन, एज अ मुस्लिम इज रिलीजन। और मुझे याद है कि आज से कुछ 10 साल पहले या 9 साल पहले मैं एक कृष्णा जी के मंदिर गई थी, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूंगी तो हिंदू बन सकती हूँ। इट इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन कि मुझे पता है कि ऐसे क्रिश्चियन बन सकते हो, ऐसे आप मुस्लिम बन सकते हो। मैंने उनको कुछ पढ़ते हैं क्या, उसने बोला कि कुछ नहीं पढ़ना क्या है। मैं कहा हम कलमा पढ़ते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, तो आप में ऐसा कुछ है। उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पर मैं कुछ बोले नहीं पड़ा, क्योंकि मैं एक अब्राहमिक बैकग्राउंड से आती हूँ। यहाँ पे डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था मेरे मन को समझना कि कल्चर क्या है या हिंदू धर्म भी क्या है, इतना वास्ट कैसे है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है, ये सब चीजें। तो इस जो है कम्युनिकेशन मुझे लगता है बहुत कम है। मैं खुद बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश करती हूँ। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर हिंदू राष्ट्र का कंसेप्ट है क्या है, किस पे बेस होगा, क्या होगा, क्या स्टेट के अंदर रीजन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जब अपने कल्चर को नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किस चीज को एक्नॉलेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आर्टिकल भी मैं पढ़ती रहती हूँ, देन मुझे समझ में आ रहा है कि मे बी हिंदू जो कल्चर है वो एक्नॉलेज करने का पार्ट यूसीसी भी है। ये बात लोग बोलते हैं, एंड मुझे तो लगता है कि तो सेक्युलर चीज है। अगर यूसीसी आता है तो ये तो रियल सेक्युलर चीज है। तो बात यहाँ ये है कि अभी बहुत सारी क्लैरिटी आना बाकी है। तो मुस्लिम सोसाइटी में तो बात नहीं हुई है। और इधर मैं राइट विंग में बहुत लोगों से पूछती हूँ तो मुझे बहुत क्लियर आंसर नहीं मिलता। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी बहुत अच्छे से आंसर भी नहीं सकती। बट मुझे लगता है कि एक कल्चर नेशन का जो है, इस लैंड का जो कल्चर है वो क्या है, एंड ये बात समझना कि इस कल्चर से कुछ रीजन निकले हुए हैं, जो बुद्धिज्म हुआ या सिखिज्म हुआ, राइट, एंड कुछ ये रिलीजन है जो फॉरेन लैंड से है। तो इसमें क्लैश कैसे होता है, को समझने के लिए ये सारे हिस्ट्री है और टेक्स्ट है वो समझना पड़ेगा, उस पर बात करना पड़ेगा। हुआ ये कि सेक्युलरिज्म के बाद उस पर बात करना बैन कर दिया, आप ये कह नहीं सकते हो, और बोला गया कि सबको इक्वल फुटेज पे रखा जाए, जो पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक इस पे बहुत सी बात करनी पड़ेगी, एंड मुसलमानों समझना पड़ेगा कि रिलीजन कल्चर अलग है। तो खुद हिंदू कल्चर फॉलो करते हो, लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन आप देखो इंडियन मुस्लिम को 4 शादी अलाउड है, बट वो करते नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम एक शादी करते हैं, क्यों? क्योंकि कल्चर ऐसा ही रहा है हमेशा। ये और मेरे अंकल करना चाहे बवाल में क्या
एग्जैक्टली राइट। तो वो सब चीजें समझाना और इस पे बात करना, बहुत कम बात हो रहा है बोलूंगी, बहुत Hmm. बात करना, बहुत डिस्कशन करना अभी बाकी है। Hmm. Yeah, but anything to add to that? Like, how does a progressive Muslim see their place in a country that sees itself more and more as a civilizational state? I think अमान का point है किस तरह से जो हिंदुत्व मूवमेंट है या जो mainstream हिंदू मूवमेंट है, normal Indians हैं, किस तरह से civilizational state को define करते हैं. I think that needs to crystallize a little bit better. But anything else to add to that? देखो अपना थोड़ा अलग सीन है क्योंकि मेरा थोड़ा यूनिक बैकग्राउंड रहा है सामना खालिद से थोड़ा अलग लाइक फ्रॉम द एवरेज मुस्लिम क्योंकि हम पले बड़े हैं सऊदी अरेबिया में Hmm. मुस्लिमेस्ट प्लेस डजंट मोर मुस्लिम देन Hmm. और जब हम वापस आ रहे थे क्योंकि हमारी चॉइस थी हम वापस आना चाहते थे क्योंकि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना था अगर 5 साल अगर पढ़ा नहीं इधर अल्बिटेड एज एनआरआई वाली फी देनी पड़ेगी Ah. और एनिक्स हम वापस आना चाहते थे क्योंकि मैं आपको कहानी बताता हूँ क्योंकि 80s 90s सोशलिस्ट इंडिया में इंडिया इतना डेवलप नहीं था Hmm. अब ये ट्रेंड एक्टिव था कि नौजवान मर जाते थे मिडिल ईस्ट में टू सीक देयर फॉर्च्यून पैसे बनाना Right. अब पॉइंट नहीं है अब इंडिया स्कॉलर यहाँ में एमसीज वगैरह हैं कोई जाने की जरूरत नहीं है लेकिन उस जमाने में कॉन्सेप्ट था Sure. तो ये क्या हुआ बहुत ही ट्रेजिक डेथ हुई इधर लेट 90s में हमारे खानदान में एक अंकल थे बुजुर्ग सब तो इतना मेहनत किए वो सऊदी में 15-20 साल रहे उधर पैसे बना आलीशान घर बने बैंगलोर में लेकिन क्या हुआ उस घर में थे ही नहीं वो अपनी फैमिली के साथ गुजारी नहीं अजनबी देश में Hmm. 35 लोग मत होगा वहाँ अपने फैमिली मेंबर से कोसों दूर हजारों किलोमीटर दूर उनका मतफन हुआ जो भी हुआ तो ये देखे ना समझो एक जागरण जैसे हमारे मुसलमान कम्युनिटी एक एक्सोडस की रास्ता हुआ Sure. सब लोग वापस जाना शुरू करेंगे कितना पैसे बनाएंगे और चलो अपनी बाकी जिंदगी सुख से जिएंगे उधर अपने देश में तो वापस आए तो इसे चलते हम भी वापस आए और हमें बताया गया वहाँ पे देखो भाई आप जा रहे हैं ये मुसलमान देश नहीं है गैर कौम के मुल्क जा रहे हो तो रेस्पेक्ट द लोकल कल्चर बकरी मत करो रिस्पेक्टफुल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट माइनॉरिटी हिंदू मुल्क में तो ऐसे हमें बताया गया था तो अपनी फैमिली में तो हम हमेशा से सेल्फ अवेयर हैं कि हमारा थोड़ा एलियन कल्चर थोड़ा एडजस्ट हो रही है एडजस्ट हो वाली Interesting. मेंटालिटी हमारे में रही है तो ये उनके में चलता हूँ Hmm. तो यहाँ पे अब सिविलाइजेशन अपराइजिंग जो भी हो रहा है इसलिए मोदी आने के बाद ये जो हिंदू बिकम मोर सेल्फ अवेयर जो भी Hmm. भाई अब तो मुस्लिम एरियाज हैं हमारी मस्जिदें हैं अगर किसी को रहना है तो उन एरिया में जा सकते हैं रह सकते हैं मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है Right. Okay, so to come to you now, Khalid, do you see कि जो अहमद कह रहा है, it almost sounds a little bit like, and I'm not sure if that's exactly what you're saying, Ahmad, but this is what I'm consuming, कि you're saying कि as India becomes more civilizationally aware, you're saying Muslims have the option to keep ghettoizing if they want to, वो अपने ghetto बनाकर उसमें रह सकते हैं if they want, if they feel If they want हम वो ऑप्शन है ही हमेशा वो option है. जैसे कि मैं एरिया में था माई सुनेट वाज सिद्दीक नगर Sure. 99% मुस्लिम एरिया Hmm. तो रहेंगे हमसे वहाँ Right. प्रॉब्लम And of course, there's the option. But do you think that's what the mainstream should be doing? That's what the majority of the Muslim population should be doing? Is that the way forward? Is increased ghettoization the way forward, or a level of reckoning with the civilizational state is the way forward, Khalid? Yeah, I feel I've grown up in the most privileged, most diverse environment, right? I even feel it cringe to say that my 5 closest friends are Hindu. I mean, it makes me feel sick to even say that, right? Yeah. Culturally, we are not different, right? For my life, till my death, if it's any issue after family, it's them I'll go to. These things have never cropped up in our conversations. Growing up in Pune, which is one of the most cosmopolitan cities of India, going your dil chata hai, having your first crush and asking out your first girlfriend and all that you do together. Yeah. Right, your question ends there and all. Today, my children, right? I really like it. I get very nostalgic. There is some Sardar cute kid comes, then there's some Christian friend. So all that is here. It's part of India. It's in its fabric. Now, if there's a civilizational resurgence happening among the Hindu community, and one should not negate that. Try to have a conversation, right? Of course, I personally prefer dialogue intellectuals who have substance, and who are ready to, who are not in reactionary mode, like a Vikram Sampath, or even the work you do, Vishal does, Ajit does, where you converse with them, you open channels with them, understand their perspectives as well. But what has changed? Again, even within India, see, credit to India that there are 50 Islamic nations, roughly that much. And this is polytheistic majority country. It still has the second highest number of mosques in the world. So obviously, a lot of people on the side say that is tolerance for fault, right? But the point is, what I'm trying to say is that after that being there, all 5 pillars of faith being secured, you leading everything, in religious freedom, economic freedom, everything. Diversity within the community, right? Shia's prosperous. I really look up to this aspect of both Shia's entrepreneurial skill in them, all that. So your choice. You want to live in that confrontational victimhood of Umar Khalid and Rana, where you want to every day wake up hating the Hindu, use the Hindu, get paid a few dollars, a few crumbs for it, and be part of this secessionist communist alliance where your entire thing is there. Or you want to be a Kalam, or you want to be, Shah, or you want to be someone who wants to contribute to the nation. तो है बाकी आफ्टर ऑल क्या ही तुम बोलोगे कि नहीं या
one sad thing is happening also. They are coming to terms with their historical grievances. उसमें कुछ है invaders, तुम क्यों associate कर रहे हो? नहीं हमारे बारे कहाँ बोल रहे हो? किसी और कंपनी के बारे थोड़ी बोल रहे हैं. So उसके बाद भी numbers ने आए. And देख मैं हमेशा कहता हूँ कि ये discourse change होना चाहिए. It's not minority, second largest community. Because we are majority, many numbers are also good. उस हिसाब से हम minority, I don't know what question 6 and this micro minority or RC are like minuscule micro you know something. So ये जो leadership रही है ना हमारी confrontational, victim mode ये stop it. I mean ठीक है तुम्हें करना है करो. It will exist. We have chosen a side. You can call us anything. It is very clear that when we choose the side, Amanami, लोग हर जगह same हो गए. Even our enemy nation, which every day gets what security forces to bashes and जिसका वजूद is the annihilation of India. वहाँ भी आम मराज जिंदगी normally है. He wants to get up and pray. हाँ वो ideology जिसके वो लड़ रहे हैं, जो अगर ideology को cloud की तरह देखा जाए उस मुल्क के ऊपर, मुझे लगता है वो एक बहुत inferior और बहुत गलत सोच है जिंदगी जीने की, right? तो बस वो आइडियोलॉजी में फर्क है. वी हैव चोजन साइड ऑफ इंडिया कि हाँ ये आइडियोलॉजी वर्थ इट है. 8 मेजर वर्ल्ड फेस और जहाँ ये मेजॉरिटी है जो माइनॉरिटी है ग्लोबल, और इनको श्रेय जाता है कि इसकी वजह से सेक्युलरिज्म रहता है, राइट? अब उसमें वेदर दिन उनके कुछ एलिमेंट कम्युनिस्ट जो खुद ही एनालिसिस करना चाहते हैं, बैलेंसाइजेशन करना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ भी हैं, सेशंस के भी खिलाफ है, विचारधारा के खिलाफ. और अल्टीमेटली कोशिश ये है कि that young Muslim boy who gets fed in so much victimization by the likes of Rana ना दिखे हो, aspiration दिखे हो. He wants to be the next Khan, the next Irfan Pathan, the next Arif Muhammad Khan Saab, the next Maulana Wahiduddin Khan Saab, the next Azim Prinjeez Khan. ऐसे लाखों हैं. So that is our humble endeavor. In this we definitely are standing with the civilization. जहाँ तक बाकी कि अब ये कैसे होगा क्या होगा, मतलब नाम कुछ भी दे दो, मतलब आप किसी कंट्री को सेक्युलर बोल दो, हमारे नेबरिंग कंट्री थोड़ी बन जाएगी. तो ठीक है, हम भी खामियां हैं बहुत, लेकिन ठीक है सेंस बैलेंस आ जाए. नहीं है तो ठीक है, हम अपना काम करें, आप अपना लगो 24/7 विकम हो बैशिंग मेजॉरिटी, और फिर बोलो यही पावर है यार. सबसे इजी बात चीज तो इंडिया में यही मेजॉरिटी बैश, बाकी कंट्रीज फिर में पावर समझ आएगा, राइट? तो हम नॉट मच कंप्लेन, बट ग्रैटिट्यूड दैट सिविलाइजेशन का हिस्सा है, जहां आप हर स्कूल में टायर 1 सिटी हो या विलेज में आना हो, आप इतने मजहब के बच्चों को देखते हो, आप आपके दोस्त होते हैं. ये आइडियोलॉजिकल बात तो ठीक है, लेकिन आपकी रोजमर्रा जिंदगी तो वो है ना आपका दोस्त, वो आपके कल्चर से आपको ऐड करता है, राइट? आप अपने कल्चर से कुछ ऐड करते हो, हर का कोई मजहब का कोई दोस्त होता है, तो ये काम मिलता है यार. अब में तो ठीक है, वो उन पे है, हाउ द मेजॉरिटी कम्युनिटी. मुझे नहीं लगा कि उनके यार उनके साथ रहते हैं कल्चरली, हम अपने आप को वही देखते हैं, राइट? तो हमें भी पता है कि यार दे वांट अ रिजिड स्ट्रक्चर, वो तो खुद ही मान गए, कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, नहीं करो. जिसको मानना है आपके पास रिजिड प्लेसेस, जिसको नहीं मानना है वो भी है, जिसको यही तो अल्टीमेट ना, लिव एंड लेट लिव. तो very finally ये इकोसिस्टम है जो चाहता है कि आप चलते रहे या दायरे में नहीं रहे. और टॉलरेंस क्या है? क्या टॉलरेंस भाई? टॉलरेंस मतलब ये नहीं कि आप आदमी की लिमिट टेस्ट करते हैं उसको टूटने तक. क्या है टॉलरेंस? बात करें तो हिंदू घर में, मुस्लिम हिंदू घर में चाय पीना चाहोगे, हाँ टॉलरेट करेगा. उसके घर में खाना खा चाहोगे, हाँ टॉलरेट करेगा. उसके घर में सोना चाहोगे, हाँ वो भी टॉलरेट करेगा. अब उस बेटी बनने की बात करोगे तो तखलीफ करेगा ना वो, तब इंटर टॉलरेट. देखो भाई लिमिट होती है, लिमिट हो गया, बी सिर्फ बी रीजनेबल. So sorry Sham, go Khalid. I mean both me and Amna big fans of Shahrukh, obviously millions of Indians and people are, irony is कि ये चीज की भी वो बात नहीं करते कि उसकी आइडेंटिटी क्या है और वो क्या मायने रखता है एरिया के, वहां किसको उसका मजहब देखा, राइट? अब लोग कहते हैं ना कि देखो यार अरसों हुआ, उसको विक्टिमाइज किया. यही शाहरुख है जो रियल लाइफ में गणपति रिचुअल्स कर रहा है. उसका बेटा भी करता है, उसका बच्चों को करवा, उसके बच्चों को गाली. उस टाइम यही लोग आके उसको कहते हैं कि यार तू तो जन्नत जा रहा है, तू क्या तू नाम बदल ले, तू ये है, राइट? वो तो मतलब सेंस ऑफ बैलेंस रखो यार. आई मीन ठीक है, अपने इर्द-गिर्द देखो, बाकी नेशंस में देखो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट. तो सलमान अहमद एक्टर्स पूजा वगैरह करते हैं तो मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा हो गया. दैट वो इस्लाम के दायरे के बाहर हो गया ना. तो फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव के क्रिटिक्स जो है गलत नहीं है जो कह रहे हैं. गोइंग द बुक बस बोल रहा हूं. But in the end, I don't agree, because in the end it is between Allah and बंदा. So जो फीमेल वाले ना, हाँ ठीक है, but in the end वही डिसीजन लेगा जो भी होगा. ये भी लिखा हुआ है कि nobody need to interfere. स्टेट कर सकता है, but यहाँ पे स्टेट है नहीं इस्लामिक. First thing is that I don't believe in that also. But in the end वो बंदा अल्लाह के बीच में है. But यहाँ बाकी मुस्लिम रोल दिखा रहे हैं, तो यही सिस्टम को बिल्कुल हाईलाइट नहीं कर रहा है. ये भी नहीं. और दूसरी बात ये भी है ना कि अगर फिर सेम आर्गुमेंट रखा जाए तो फिर द आर्गुमेंट की why should the people from Hindu community make such a big superstar of other faith? And the thing is यार, एक ऐसे देश में and Khalid said ना कि ऐसे देश में जहाँ 8 मेजर रिलीजन रहते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं, दूसरे पड़ोसी हैं, तो इस तरह से साइल में रहना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. कि ठीक है एक दिन पर्टिकुलर गणपति का चल रहा है कुछ, तो ठीक है सारे मुस्लिम अपने घर में चुपचाप बैठ रहे हैं. जिस दिन ईद चल रही है उस दिन सारे हिंदू अपने घर में चुपचाप बैठे. कोई एक दूसरे का फेस्टिवल सेलिब्रेट मत करो, सब अपने इंडिविजुअल साइलों में बैठे. इंडिया जैसा देश से नहीं चल सकता, पाकिस्तान वैसे चल सकता है, बांग्लादेश वैसे चल सकता है. आई जस्ट डोंट थिंक कंट्री लाइक इंडिया कैन वर्क लाइक दैट.